नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक डोभाल और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। नमस्कार। आयुष मंत्रालय की ओर से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन। समग्र स्वास्थ्य के लिए योग इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए आह्वान करते हैं ज्ञान की देवी मां शारदा का कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं गंधर्व महाविद्यालय के कलाकार। योग भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। आज 21 जून विश्व के 192 देशों में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि आज इसी उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में
विश्व के विभिन्न भागों से 26 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपद येसो नायक से कि कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। Respected Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi ji, my colleague in the Council of Ministers, MOS Finance, Shri Jayant Sinha ji, esteemed Doyen of the Yoga tradition in India, Swami Ramdev ji, Dr. H.R. Nagendra ji, Dr. Virendra Hegde ji, Secretary of Ministry of Ayush, Shri Sanyal ji, eminent yoga gurus in the audience, member of Diplomatic Corps, all the invited guests and delegates in the international conference, officials of the various government ministries and departments and other organizations, members of the media, both print and electronic, and friends. It gives me immense pleasure in welcoming all of you to this international conference on yoga for holistic health. On this momentous occasion in the history of our country and the world, when we are celebrating the very first International Day of Yoga adopted by the United Nations, I feel that this is a befitting occasion for such a gathering of scholars and practitioners interested in the subtle nuisance of the subject of the yoga in all its dimensions, and particularly focusing on the aspect of holistic health. Yoga is one of the greatest gifts of the country to the entire mankind. Probably that is the reason why as many as 177 out of 193 UN member states not only supported the ideas of the declaring 21st June as the International Day of Yoga, but also co-sponsored the resolution. This global arrival of the yoga at the initiative of the Honorable Prime Minister will align the world forces to a new thinking and approach towards the problems of the humanity and mankind, which is living on the edge. The unification of the body, heart, mind, and soul, as the Honorable Prime Minister spoke of the Rajpath today morning, will create the harmony amongst the mankind and with nature the world is longing for. It was a new dawn at Rajpath today, and ladies and gentlemen, let us take this light forward in all earnestness. Everyone in today's world is subjected to various forms of stress in life. In the modern age, our life has become a mechanical. Our life is oriented outwards rather than inwards. Nobody is having time to look within, no, to enjoy the inner peace of the happiness. Yoga helps a person to find peace and happiness within. Yoga brings harmony between the body and mind, as well as mind and spirit. The harmony helps the person to lead the peaceful and happy life which every human being is aspiring for. Health aspects of yoga has become a most significant, and modern medicine has also started recognizing the value of the same. Yoga is largely being used in diseases prevention and for adjunct therapy or even stand-hold system of many dimensions of the healthcare. The biggest challenges of the health sector today is the large burden of non-communicable disease. Conventional medicine is not having permanent or cost-effective solution to the problem of the communicable disease. Many feel that yoga can play a great role in overcoming this problem, both in terms of prevention and management. The science of yoga provides far-reaching benefit in different fields. Yoga is beneficial in the health problem related to the working in the high-altitude areas, working in the extreme climate condition, and under various stressful situations. Yogic technique can be used for IT workers, industrial laborers, and sedentary workers. Yoga can enhance the endurance of the sports person. It can improve the memory, concentration power to the students. It can help the improving the skill beside the providing the health benefit. I would like to congratulate Honorable Prime Minister for his vision, which paved the way for the declaring of International Day of Yoga. I'm sure
the enthusiasm shown by the people and the countries for yoga would increase further in the coming years and will help in making yoga way of across the globe. Thank you very much. Jai Hind. श्री श्रीपद येसो नायक का हम आभार व्यक्त करते हैं। योग की चेतना को समग्र विश्व में पहुंचाने का श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में योग की अलख जगाने में अग्रणी रहे हैं स्वामी रामदेव जी। हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया आज के इस अवसर पर सभी को संबोधित करें। आज 125 करोड़ भारतवासियों के लिए 125 करोड़ भारतवासियों के लिए और इस पूरे विश्व में बसने वाले करीब 700 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन। 177 देशों के समर्थन से और उसमें भी 47 मुस्लिम देशों के समर्थन से जिन्होंने सौभाग्य उपलब्ध कराया, ऐसे सात्विक नेतृत्व देने वाले इस देश के दिलों की धड़कन बन चुके हमारे इस देश के नायक होने के साथ साथ वो एक राजऋषि की भूमिका में भी ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रथम अभिनंदन करता हुआ, योग जो हमारे पुरखों की विरासत, ऋषियों का एक अनुपम ज्ञान जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, पंथ निरपेक्ष ताकि सिद्धांतों पर खरा उतरता है, उस साइंटिफिक यूनिवर्सल एंड सेक्युलर नॉलेज को एक जीवन पद्धति की तरह हम अपने जीवन में आत्मसात करें। योग को एक पंथ की तरह नहीं, एक जीवन पथ के रूप में हम स्वीकार करें। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही कहा कि आज राजपथ योग पथ बन गया है, ये जीवन का पथ बन गया है। और सचमुच योग जब हमारी जीवन शैली में उतरेगा, योग जन जन के जीवन में जब समाहित होगा, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, राष्ट्र और विश्व जब योगमय बनेगा, तभी समग्र स्वास्थ्य ऊपर आएगा। स्वस्थता केवल तन के आधार पर नहीं, स्वस्थता केवल मन के आधार पर नहीं, तन के आधार पर, मन के आधार पर और अति मानस चेतना के आधार पर भी हम में स्वास्थ्य आए, उसका साधन है योग। आज बीमारियों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है हिंदुस्तान में, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत बड़ा बजट इसके लिए जाता है। अभी कल हम सुन रहे थे कि करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है शराब पीने से। यह तो एक हादसा है। हमें ऐसे हादसों को यदि रोकना है तो योग के रास्ते पर आना पड़ेगा। वहां निरोगी भी बनेंगे, निर्व्यसनी भी बनेंगे, दोनों काम एक साथ हों। निर्व्यसनी होना यह हमारे जीवन में पवित्रता लाता है। तो आज मैं सार संक्षेप में यही कहना चाहूंगा। बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे कि मोदी जी तो अच्छे दिन लाने के लिए आए थे, ये योग के काम में कैसे पड़ गए? भैया, मोदी जी अच्छे दिन भी ला रहे हैं राजनीतिक तौर पर भी, लेकिन जो योग करेगा उसका दिन अच्छा जरूर होगा, ये गारंटी है। योग से ही अच्छे दिन की शुरुआत होगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। क्योंकि जन जन जब निरोगी बनेगा, निर्व्यसनी होगा, निर्द्वंद्व होगा, निर्वैर होगा, निर्भय होगा, उसके शरीर में ऊर्जा होगी, उसके मन में ऊर्जा होगी, उसकी चेतना में अपरिमित ऊर्जा का जो स्रोत है जब उसको जागृत करेगा तो एक एक मानव महामानव बनेगा। यह है योग की ताकत। और इसी के लिए श्री अरविंद ने कहा था, मैं अति मानस चेतना का अवतरण इस धरती पर देखना चाहता हूं, मानव को महामानव के रूप में देखना चाहता हूं। योग वो विधा है। इसलिए ठीक कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रभात में ही कि योग मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है, वो उसका प्रथम चरण है, उससे आगे जाना है। व्यायाम भी हमें करना है, हमारी मांसपेशियां बलिष्ठ होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे
वेद कहता अश्मा भवत नस्तनो बलम उपास्व, लेकिन उससे आगे जाना, शरीर बल, मनोबल, आत्म बल को बढ़ाना है और एक वैश्विक बल के साथ में हमें तादाद में स्थापित करना है। तो योग हमारी दिनचर्या में आए और हमारे आचरण में आए। दिनचर्या में हमें व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान के तौर पर, और आचरण में हमें पवित्रता के तौर पर, पुरुषार्थ के तौर पर, सच्चाई, ईमानदारी के तौर पर हमें अपनाना पड़ेगा। जब इसको समग्र रूप से अपना लेंगे तो निश्चित रूप से एक पूर्ण विकसित मानव के रूप में योग हमें संबल देगा, हमें बल देगा। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम समत्वम योग उच्यते युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योग की समग्र चेतना हमारे भीतर अवतरित होगी और हम तन मन का आरोग्य पाके वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व के सूत्र में बंधते हुए, अष्टांग योग का पालन करते हुए, क्रिया योग का पालन करते हुए, शील, समाधि और प्रज्ञा के आरोहण को प्राप्त करके एक पूर्ण विकसित मानव के रूप में अपने आप को हम पाएंगे। अपने भीतर एक व्यक्ति नहीं, अपने भीतर हम समष्टि को पाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, यही है योग का अंतिम ध्येय, कि एक व्यक्ति अपने भीतर छोटी छोटी इकाइयों को नहीं, समग्रता से संपूर्ण समष्टि को अपने भीतर आत्मसात कर सके। इसके विधा योग है, इसको हमें लंबा लेके जाना पड़ेगा, दिनचर्या में आत्मसात करना पड़ेगा। जन जन में हमें योग को आत्मसात कराना होगा, योग में विश्व बने और इसके ऊपर आगे साइंटिफिक रिसर्च भी हो, हम सिस्टम में भी इसको इंक्लूड कर पाए। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज यह भी आग्रह करूंगा कि उनके पावन नेतृत्व में योग को कई शताब्दियों के बाद एक बहुत बड़ा गौरव मिला है और ये पूरी मानवता के लिए आदरणीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक तरह से इस धरती के लिए ये वरदान है और उन्होंने जो काम किया उनकी मैं प्रशस्ति करता हुआ कि आगे अनुसंधान का भी कार्य हो और इसमें भी वो एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए हम सबको भी सौभाग्य दें कि इस क्षेत्र में हम सब मिल करके इस काम को और आगे बढ़ाएं। मेरे तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, आने वाले 50 सालों में मैंने सोचा है कि एक एक व्यक्ति और पूरे विश्व को हम सब मिलकर के योग में बना पाएं, तो यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी धन्यता होगी। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। योग को जीवन पथ के रूप में स्वीकार करें। बहुत सार्थक बात कही स्वामी श्री रामदेव जी ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अध्यात्म एवं भौतिकता में सुंदर तालमेल बिठाने में दक्ष बहुआयामी व्यक्तित्व समाज सेवक डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने 2013 में एक विशाल योग कक्षा आयोजित की थी, जिसमें 62,824 लोगों ने भाग लिया था और जिसका उल्लेख गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किया गया है। आज वे हमारे बीच है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया सभी को संबोधित करें। मंच पर आसीन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योग एवं आयुर्वेद द्वारा नई समाज के निर्माता श्री बाबा रामदेव जी, यश व्यास का श्री नागेंद्र जी, सभा में उपस्थित सभी गण्य सज्जन बंधुओं को विश्व योग दिवस के शुभकामनाएं। श्री क्षेत्र धर्मस्थल भगवान श्री मंजुनाथ स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदा रहे। हमें गर्व है, अभिमान है कि हम भारतीय हैं। हमारे देश के इतिहास को ध्यान से देखें तो यह देश अपूर्व अनुपम संपत्ति से दुनिया के सभी को प्यारा है। आध्यात्मिक, भौतिक, प्राकृतिक, अनुपम और भी कई तरह के खजाने यहाँ पर हैं। वे हमारे पूर्वजों का कई सहस्र वर्ष की साधना, निष्ठा एवं लगन के फल है, जो धरोहर के रूप में हमें प्राप्त हुई है। इन सबको देखने वाले कुछ देश भौतिक संपत्ति को अपनाने के सोच से हमारे देश पर बहुत बार आक्रमण भी किए हैं और कुछ लोग इन भौतिक संपत्ति को लूटे भी हैं। इसके विपरीत इस पवित्र धरती की ज्ञान संपत्ति को अपनाने की इच्छा से जिज्ञासु बनकर आए कुछ लोग श्रद्धा से अध्ययन करके ज्ञानी भी बने हैं।
इनमें से एक उदाहरण अलेक्जेंडर की है, जो भारत की अपार संपत्ति को अपनाने की सोच से इस देश पर आक्रमण करने निकला था। तब उसकी गुरु महान दार्शनिक ज्ञानी अरिस्टोटल अपने शिष्य से भारत से मुझे पवित्र कहना लाने वाली मिट्टी, गंगा नदी के पानी, भगवत गीता, भागवत के प्रतिरूप में बांसुरी और एक संत, इन 5 वस्तुओं को लाने के लिए कहता है। आज भारत को फिर से अपने अपार ज्ञान राशि से महान बनना है। योग के महत्व को सारे विश्व में फैलाना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहावत के अनुसार स्वास्थ्य, आयुर्वृद्धि एवं बौद्धिक तेजस को अपनाने का मार्ग दिखाना है। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषित किया है, यह हम सबको अपार हर्षित करने वाला विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अनेक देशों का प्रवास करके सभी से स्नेह एवं भाईचारे का वातावरण निर्माण करके आर्थिक प्रगति के लिए अपार धनराशि को देश के लिए लाए हैं और हमारे आध्यात्मिकता, नैतिकता का जो खजाना है उसे विश्व में बांट रहे हैं। इस अवसर पर मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सोलर ऊर्जा से प्रथम बार एक छोटा विमान 2 विमानों का चालक बर्ट्रैंड और बॉश के द्वारा भारत आया था। 35,000 किलोमीटर की उड़ान पूरा करने में उनको 500 घंटे का समय लगा। केवल महासागर का दूरी करने में विमान चालकों को 5 से 6 दिन का लगातार विमान चलाना पड़ा। विमान चालकों को गुरु संजीव बनोट स्विस देश में जो रहते हैं, वो विमान चालकों को योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी थी और विमान कक्ष में योग करने का व्यवस्था की हुई थी। विमान चालकों ने अपने शरीर और मन को काबू रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लिया। हमारे नौजवानों से विनती है कि वो भारतीय संस्कृति का महत्व जाने, अपनाए और गर्व महसूस करें। योगक्षेम महाम्यम, योग के द्वारा क्षेम, कुशलता प्राप्त करके विश्व में योग के माध्यम से आचार्य बने। विश्व में प्रगति का, विकास का जो भागदौड़ है, इस पर कोई लगाम नहीं डाल सकता। आर्थिक विकास के भागदौड़ में मानसिक संतुलितता का भी सही रहना आवश्यक है। इसलिए भागदौड़ के इस जिंदगी में जैसे होशियार घुड़सवार अपनी बुद्धिमत्ता से घोड़े पर काबू पाता है, वैसे ही योग द्वारा जीवन के प्रति सार्थक भाव रखने से आदर्श जीवन का निर्वाह कर हर कोई कर सकता है। आज का यही दिन भी उसी का संकेत है। हम सिर्फ इसे भाषण में नहीं कह रहे हैं, भारत में सबसे पहला योग एवं प्रकृति चिकित्सा विज्ञान विद्यालय विद्यालय 1990 में हमने धर्मस्थल में शुरू किया था। श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर शिक्षण संस्था के अंतर्गत स्थापित इस विद्यालय से 30 राज्यों और 4 अन्य देशों के छात्र अभी अध्ययन कर रहे हैं और अब तक इस कॉलेज में से 800 प्रकृति चिकित्सक और योग वैद्य बनकर देश विदेश में इस दिशा में सेवानिरत है। योग जो ज्ञान, कर्म और भक्ति का आदर्श मिश्रण है, उसे हर साल 21 जून को सारे विश्व में योग दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस संदर्भ में उपस्थित सभी को अत्यंत गौरव से इस ऐतिहासिक दिन की शुभकामना कहते हुए फिर से भारत विश्व का गुरु बनकर आदर्श जीवन का शुभ संदेश दे, यही प्रार्थना से सबको प्रणाम। जय भारत, वंदे मातरम।
बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने। मन को संयमित रखने के लिए योग करें, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के चांसलर हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेषज्ञ कमेटी के अध्यक्ष हैं। देश में योग दिवस के समग्र आयोजनों में डॉक्टर नागेंद्र का विशेष योगदान रहा है। आज के इस अवसर पर हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया सभी को संबोधित करें। My dear brothers and sisters, yoga experts, elders, we all are highly grateful to our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for bringing yoga all over the world with the purpose of bringing Vasudhaiva Kutumbakam to make a world family, and that can happen with yoga. And the first thing that he did is to have a separate Ayush ministry, and our Shripad Naik ji, who has been bringing new dimensions to yoga, and what a wonderful program we had this morning, thanks to the meticulous planning and execution of our Secretary Nilanjan ji and the Joint Secretary Anil Ganariwala ji. And I have been given that honor to chair the International Day of Yoga, and I place on record the wonderful cooperation all the joint secretaries have given to us to make this such a big success. Joint Secretary Shri Anil Ganariwala ji and Jitendra Sharma ji, Anup Srivastava ji, and the Director of the Moraji Desai National Institute of Yoga, Basured ji, we place on record the great work that have been put forth by all of them, day and night, 24 hours, to make this a grand success. And to all the yoga rishis who joined us in our committee to bring out this common protocol, and that was a great achievement for us in this wonderful occasion. We all know that the World Health Organization defined health as not merely absence of a disease or an infirmity, but a state of well-being at the physical, emotional, social, and spiritual levels. And we always say that prevention is better than cure. But how much do we really mean in the world spectrum? When we look at the budget the world over, how much do we spend for prevention? Hardly 1 to 2% of the entire budget. Ayush Ministry essentially hinges on prevention, non-pharmacological approaches, yoga, naturopathy, and various dimensions of Ayurveda and others. And therefore it is time that we invest more and more in the preventive aspects and also for promotion of positive health. And that is the one that can reduce the cost in a very big way. And yoga excels here with a cost-effective way by which we will be able to do that. And with a great thrust given by our Prime Minister, we are sure that yoga can become a very effective adjunct to the modern medical system and also can raise itself to the higher level so that Ayush can become the mainstream in years and decades to come. And that's going to be our great contribution of yoga to the entire humanity and for bringing total health. With this, I once again invite all the yoga masters and others to join hands and work together as a harmonious whole, as one team, to bring this dimension of total health throughout the country. Dhanyavad. डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा के लिए योग एक अहम भूमिका निभा सकता है। बहुत सुंदर बात कही, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लोगो और टैगलाइन के लिए आयोजित प्रतियोगिता के विजेता हैं मेसर्स पंचतत्व एडवर्टाइजिंग। इनका बनाया लोगो आप पीछे पृष्ठभूमि में देख सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ना योग है। भूरी पत्ती भूतत्व की, हरी पत्ती प्रकृति की, नीला रंग जल तत्व का, चमक अग्नि तत्व का और सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। इनकी टैगलाइन है सामंजस्य और शांति के लिए योग। श्री संजय नारायण सिंह की पंचतत्व एडवर्टाइजिंग की डायरेक्टर मिस रुचिका पुरी
एजेंसी की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर आ रही हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया इन्हें 25,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, कृपया मंच के आगे आएं। कृपया मंच, अच्छा आइए। ये लोगो जो आप इस समय देख रहे हैं, इसके लिए पुरस्कृत हो रही है पंचतत्व एडवर्टाइजिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय द्वारा 100 रुपये और 10 रुपये के 2 स्मारक सिक्के तैयार किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ये सिक्के माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकार्पण के लिए प्रदान करेंगे। हम अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि कृपया इन स्मारक सिक्कों का लोकार्पण करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों सिक्कों के बीच में सिंहमुखी अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, बाईं तरफ देवनागरी में भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया अंकित किया गया है। इसके पृष्ठभाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो, उसके चारों तरफ देवनागरी में सामंजस्य एवं शांति के लिए योग तथा अंग्रेजी में योगा फॉर हार्मनी एंड पीस अंकित किया गया है। आज के ऐतिहासिक दिवस पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये की एक स्मारक डाक टिकट तैयार की है। भारतीय डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली सर्कल श्री विनीत पांडे डाक टिकट की प्रथम प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकार्पण के लिए प्रदान करेंगे और हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कृपया इन स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्मारक डाक टिकट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो अंकित है। लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने प्रेरणामय उद्बोधन से सभी को कृतार्थ करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान श्रीपाद नाइक जी, श्री जयंत सिन्हा जी, स्वामी रामदेव जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर हेडगे जी, fellow participants of yoga assembled here today and all over the world. Today we are celebrating the first International Day of Yoga. When I spoke at the United Nations General Assembly on 27 September 2014, urging the world community to adopt an International Day of Yoga, little did I know the kind of unprecedented response our proposal would receive. The community of nations responded as one. On December 11, 2014,
the 193-member United Nations General Assembly approved the proposal by consensus with record 177 co-sponsoring countries. वैसे यूएन के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है. As I stand here today, the International Day of Yoga is being celebrated across the world. Millions of people around the world are participating in this event. From sunrise in the Far East to sunset in the farthest corner of the Western Hemisphere, people will join in this great celebration of yoga today. In India, this morning, millions of people participated in a simple yoga demonstration at Rajpath, in state and district capitals, in community, groups, and in their homes also. This solidarity in yoga, this coming together with our brothers and sisters in other countries, brings our hearts and minds closer. I'm also happy to release here today a commemorate coin and postage stamp on the occasion. I'm grateful to the international community for the support. I acknowledge with all humility that this support is not just for India. This support is for the great tradition of yoga, the tradition that helps individuals and societies to discover a sense of oneness with the self, with each other and nature. The reach and spread of yoga span continent, cuts across differences of colors, class and creed. I am told that there are communities of yoga practitioners in almost every country in the world. From the banks of the river Indus to every continent in the world, yoga has spread harmony between man and nature and a holistic approach to health and well-being. It is said that yoga transforms lives. जो लोग योगा से परिचित हैं उनको पता है कि योगा एक प्रकार से, अगर हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि वो जीवन को जी भर जीना चाहता है. हर कोई जीवन को जी भर करके जीना चाहता है. और मैं विश्वास से कहता हूं कि योगा ये जीवन को जी भर करके जीने की जड़ी बूटी है. In order to benefit fully from yoga, to understand yoga in its entirety, we must understand who is yogi. A yogi is a person who is in harmony with himself, his body, with his surroundings, with nature. Yoga is the means to achieve that harmony. From the Upanishads comes the idea of yoga to transform human consciousness through control of body and senses through constant practice.
The body is the vehicle for the realization of the Supreme Being. The Bhagavad Gita, the song of the world, is a call to action and defines itself as a Yoga Shastra. The Gita says, Yoga Karmashu Kaushalam. That is, yoga is excellence at work. Work with devotion and without attachment is yoga. The Gita also says, Yogas tatha kuru karmani. Act with the discernment of a yogi. Yoga is therefore a vision for a harmonious future for humanity. It is an avastha, that is a state of mind, as a distinct from a व्यवस्था. कई लोगों को योग एक व्यवस्था के रूप में दिखता है. योग ये व्यवस्था नहीं है, योग एक अवस्था है. योग ये कोई संस्था नहीं है, योग ये आस्था है. और जब तक हम उसे उस रूप में नहीं पाते, जब तक हम उसे टुकड़ों में देखते हैं, उसकी पूर्णता को पहचान नहीं पाते. People often think that yoga is just a set of exercises. Yoga is a philosophy of discipline and meditation that transforms the spirit and makes the individual a better person in thought, action, knowledge, and devotion. The problems of modern lifestyles are well known. People suffer from stress-related ailments, lifestyle-related disease like diabetes and hypertension. We have found ways to control communicable disease, but the burden of disease is shifting to non-communicable disease. Young people who are not at peace with themselves seek refuge in drugs and alcohol. There is ample evidence that practicing yoga helps combat stress and chronic conditions. If the body is a temple of the mind, yoga creates a beautiful temple. The benefits of yoga are manifold. When practiced correctly and with discipline, yoga leads to perfection of our body's potential in strength, skill, and general well-being, peaceful and stress-free living. कभी कभार योगा की शक्ति को पहचानने में भी हम वैसी ही गलती कर देते हैं जैसी हम अपने आप को पहचानने में करते हैं. जिस व्यक्ति ने वृक्ष नहीं देखा, बीज से वृक्ष होता है, उसका अगर ज्ञान नहीं है और उसे कोई बीज बता दे, सीड्स बता दे कि देखो इसमें ये पोटेंशियल है, कितना महान वृक्ष बन सकता है, तो विश्वास नहीं करेगा, वो सैकड़ों सवाल पूछेगा. लेकिन उसी छोटे से सीड्स को, बीज को अगर उचित लालन पालन हो, खान पान हो, ऊर्जा हो, पानी हो, प्रकृति का साथ हो, वही बीज वट वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है. मनुष्य के भीतर भी परमात्मा ने सभी शक्तियों का संपुट दिया हुआ है. मुझे दिया है और आपको नहीं दिया है, ऐसा नहीं है. मानव मात्र को यह सामर्थ्य दिया हुआ है, लेकिन जो उसके लालन पालन की कला जानता है, जो उसे विकसित करने का अवसर प्राप्त करता है, जो व्यवस्था के तहत, आस्था के तहत, प्रैक्टिस के तहत
धीरे धीरे अगर विकसित करता है तो वो भी उत्कृष्ट जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और परमात्मा ने जीव मात्र में जहां है वहां से ऊपर उठने की सहज इच्छा शक्ति दी होती है। योग उस परिस्थिति को पैदा करने का एक माध्यम है। और इसलिए जिसको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं, उसको शक होता है कि क्या योगा से संभव हो सकता है। लेकिन जिसने बीज से बने वृक्ष की कथा को समझा है उसके लिए संभव है। अगर बीज वटवृक्ष में परिवर्तित हो सकता है तो नर भी नारायण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, रामदेव जी कह रहे थे अहम ब्रह्मास्मि। जल चेतन सब कुछ को अपने में समाहित करने का सामर्थ्य तब प्राप्त होता है जब स्वयं का विस्तार करते हैं। योगा एक प्रकार से स्व से समष्टि की यात्रा है। योगा एक प्रकार से अहम से वयम की ओर जाने का मार्ग है। और इसलिए जो अहम से वयम की ओर जाना चाहता है, जो स्व से समष्टि की ओर जाना चाहता है, जो प्रकृति के साथ जीना सीखना चाहता है, योग उसको उंगली पकड़ करके ले जाता है। चलना तो उसको ही पड़ता है। और उस अर्थ में इसके सामर्थ्य को जगत जाने। और आज खुशी की बात है जब हम में से जो लोग 20वीं सदी समाप्ति से 21वीं सदी में प्रवेश किया, उस पल को याद कीजिए। पूरे विश्व ने सूरज की किरणें जहां जहां जाती थी आनंद उत्सव मनाया था। जब सेंचुरी बदली वो पल कैसा था। आज दोबारा वो पल विश्व अनुभव कर रहा है। जहां जहां सूरज की किरणें जा रही हैं, योग को अभिषिक्त करती चली जा रही हैं। पश्चिम से पूरब से पश्चिमी छोर तक ये यात्रा चल रही है। ये वैसा ही अवसर पैदा हुआ है जैसा 20वीं शताब्दी के अंत में 21वीं सदी की प्रारंभ की जो पल थी और विश्व ने जो अनुभूति की थी, वो अनुभूति आज विश्व योगा के लिए कर रहा है। हर भारतीय के लिए, हर योगा प्रेमी के लिए, विश्व के हर कोने में बैठे हुए व्यक्ति के लिए इससे बड़ा कोई गौरव नहीं हो सकता है। और उस गौरव गान में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब कंट्रोल एंड mastery of our life, energize प्राण, leading to health, long and disease-free life, capacity for full enjoyment of life. Opening and refining of the heart's emotions leading to greater compassion, mutual understanding, and sensitivity to the needs of others. Full development of our mental powers, leading to heightened concentration, intelligence, creativity, intuition, liberation of our spirit from ignorance, suffering, incapacity, leading to freedom, equality, constant joyfulness, and inner strength to overcome all challenges of life. It awakens the deeper sense of unity and oneness with the whole universe and all living beings. Together, this leads to the realization of our highest divine perfection. At a community level, the evolution of the individual through yoga results in reduction of greed, coarseness and violence in thought and action, enormous reduction in the cost of healthcare and social support, a dramatic reduction in conflicts and misunderstandings within families, communities,
and between nations, increase collaboration and effective teamwork in business and communities, compassion towards all beings, plants, animals, and humans, and long-term and ecological thinking in all socio-economic planning. Increase power of innovation, technology, and knowledge. Deeper impact of art, music, poetry, dance to uplift the quality of life and an overall increase in the peace of human development and evolution. To sum up, in a world of excess, of seeking after materialism, yoga promises restraint and balance. In a world suffering from mental stress, yoga promises calm. In a distracted world, yoga creates focus, creates concentration. In a world of fear, yoga promises strength and courage. A healthy body and a disciplined mind are the foundations of a world free from fear. In crafting a new self through yoga, we create a new world. We live in a world that is divided, in a world in conflict over material gains, a world in conflict over failures to understand each other. How shall we understand each other if we do not understand ourselves? Swami Vivekananda says in his book on Rajo, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or control or philosophy by one or more for all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas, or rituals or books, or temples or forms are but secondary details. It is this freedom that will free us from misunderstandings, from doubt, from conflicts, and lead us towards world peace. We are at a point in history where global warming threatens the world as we know it. The world's ecology is threatened by human greed and excess. Yoga shows the way to consumption that is healthy, balanced, and in tune with nature. We will need to raise a generation that lives according to these principles if we want to leave the world habitable for future generations. Sri Aurobindo said, Indian yoga is potentially one of these dynamic elements of the future life of humanity. It is now emerging from the secret schools and ascetic retreats in which it had taken refuge and seeking its place in the future sum of living human powers and utilities. The spread of yoga, therefore, is the symbol of a changing world. In the past, yoga was the pursuit of a select few saints. Today, it is available to all. In the words of Patanjali, Sarvabhauma, or a universal culture. It represents a world where knowledge flows without restriction of country, creed, or class. It represents a world where people come together across boundaries
for causes and concerns that unite the planet. आप कल्पना कर सकते हैं कि श्री अरविंदो के जमाने में ये कहीं नजर नहीं आता था कि योग ये जन सामान्य का विषय बनेगा। बहुत ही सीमित दायरे में था, लेकिन योगी अरविंद की दृष्टि थी और उन्होंने तब देखा था वो वक्त आएगा जब योग जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बनेगा। वो कुछ परंपराओं में या संतों तक सीमित नहीं रहेगा, वो जन जन तक पहुंचेगा। आज से करीब 75 साल पहले श्री अरविंद ने जो देखा था वो आज हम अनुभव कर रहे हैं, और यही तो ऋषि मुनियों के सामर्थ्य का परिचायक होता है। और ये ताकत आती है योग के समर्पण से, योग की अनुभूति से, योगमय जीवन से आती है। The closest parallel can think of is the movement of protect the environment, to protect the world that we live in. As we work to make the benefits of yoga accessible to the whole world, we will also work to keep barriers to knowledge down, to ensure free flow of knowledge and information across boundaries. We will work to maintain an open world free of prejudice and discrimination. I greet all present here today, my fellow travelers, in spreading the message of yoga. I greet all my fellow practitioners in different countries who are present here in spirit. Yoga is our collective gift to humanity. It may have originated in India, but it draws its energies from the millions who practice it around the world. International Yoga Day is not the brainchild of a government or of the United Nations. It is a reflection of the largest knowledge-based people's movement the world has ever seen. A movement of people whose lives have been touched, been changed by yoga. We will take this movement forward to aim for better health, more fulfilled lives, and more connected communities. On this day, I also pledge the spirit of India, the collective energy of our people, to the creation of a more equal world, a world without fear, a world of peace. We will build on the foundations of the Indian spirit and its creative genius to reach out and foster a culture of inclusiveness, of fraternity, of one global family, Vasudhaiv Kutumbakam. I will end with the grand invocation of good health and peace, the Shanti Path. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukbhag bhave. May all be happy, may all be free from illness, may all see that which is auspicious, may no one suffer. आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 2 दिवसीय सेमिनार विश्व की हमसे अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाएगी। अभी हमारा दायित्व बनता है कि विश्व की अपेक्षाओं के अनुकूल योग के सही रूप को और समयानुकूल स्थिति में हम जगत तक कैसे पहुंचाएं, दुनिया समझे
उस टर्मिनोलॉजी में हम इसे कैसे पहुंचाए। मैं कभी कभी कहता हूं कि अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन की ब्रांड हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको उसके यूजर मैनुअल का अता पता होता है। ज्यादातर तो रेड एंड ग्रीन बटन से ही उसका संबंध रहता है, टेलीफोन कट करना, टेलीफोन उठाना। और जिसको उसका ज्ञान होता है यूजर मैनुअल का, उस छोटी सी चीज को अपनी हथेली में सारी दुनिया को अपने हाथ में कर लेता है। परमात्मा ने हमें भी जो सॉफ्टवेयर दिया है ना, हमें उसके यूजर मैनुअल का पूरा पता ही नहीं है। हमें भी मालूम नहीं है कि परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है। अगर हम योगा के माध्यम से उस यूजर मैनुअल को पढ़ना सीख लें तो फिर उपयोग करना आना धीरे धीरे आ ही जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, मेरे हैंडराइटिंग तो अच्छे नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक टीचर जो कि अच्छे हैंडराइटिंग के प्रति बड़े आग्रही हैं, क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके हैंडराइटिंग बहुत अच्छी तरह सुधरने लग जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं पेन वैसे ही पकड़ते हैं, बेस्ट क्वालिटी का पेन भी होता है, कागज भी बढ़िया से बढ़िया होता है, टीचर भी भरपूर मेहनत करता है, वो भी ऐसे ही हाथ घुमाता है, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छे नहीं आते। फर्क क्या है? जिसके हैंडराइटिंग उत्तरोत्तर ठीक होने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वो कितनी भीड़-भाड़ में क्यों ना हो, कितनी जल्दी में क्यों ना हो, बुढ़ापे की ओर चल दिया हो, हाथ थोड़ा कांपने लगा हो, तो भी हैंडराइटिंग अच्छे ही रहते हैं। उसको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता है, कोई जागरूक प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो सहज अवस्था होती है। क्यों? उसने उसको इंटरनलाइज कर दिया है। जिसके हैंडराइटिंग खराब है और वो कॉन्शियसली किसी विशेष व्यक्ति को चिट्ठी लिखना चाहता है, एक दो लाइन तक तो ठीक कर लेता है, फिर लुढ़क जाता है, क्योंकि इंटरनलाइज नहीं किया है। योग को समझने के लिए मैं मानता हूं जिस बालक ने बचपन में तुरंत इसको एडॉप्ट कर लिया, अच्छे हैंडराइटिंग को कारण होगा उसके मन में जो चित्र बनता होगा, उसकी आत्मा उसके साथ जुड़ती होगी, उसकी बुद्धि उसको आदेश देती होगी, उसका शरीर एक्ट करता होगा और वो परंपरा जीवन भर चलती होगी। वो योग का एक छोटा सा रूप है। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से हम इन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए अगर हम, और ये बात सही है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बताता है तो फिर कठिनाई हो जाती है, फिर धीरे धीरे विश्वास डूबने लग जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों से देखें तो पता चलता है, हाँ यार, ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो 2 कदम मैं भी चल सकता हूं। हमने विश्व के सामने योग का वो रूप लाना है कि भाई ठीक है, आज नहीं लेकिन 2 कदम चलो, तुम पहुंच जाओगे। अगर ये हमने इसको बनाया तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा लाभ होगा। भारत के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, अगर योग को हम कमोडिटी बना देंगे तो शायद योग का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही हाथों हो जाएगा। योग एक कमोडिटी नहीं है, योग वो ब्रांड नहीं है जो बिकाऊ हो सकती है। ये जीवन को जोड़ने वाला, जीवन को प्रकृति से जोड़ने वाला एक ऐसा महान उद्देश्य है जिसको हमने चरितार्थ करना है। और विश्व भारत की तरफ देखेगा
और ये बात सही है, आज से 50 साल पहले कभी भी हमने बाजार में बोर्ड देखा था शुद्ध घी की दुकान? देखा था? 50 साल पहले शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड नहीं होता था, लेकिन आज होता है। क्यों? क्योंकि बाजार में माल आ गया। योगा के संबंध में कभी ऐसा ना आना चाहिए वो दिन, अभी तो बचे हुए हैं, लेकिन कभी वैसा दिन नहीं आना चाहिए कि हमारा ही योगा सत्य है, बाकी तो तुम फालतू में कान नाक पकड़ करके डॉलर खर्च कर रहे हो। ये व्यापार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये अवस्था है। और इसलिए एक जगत के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, जन जन के भाग्य को बदलने के लिए ये भारत की भूमि का योगदान है। उसमें संजोना संवारने का काम भारत के बाहर के लोगों ने भी किया है, उनका भी ऋण स्वीकार करना होगा। इसे हम हमारी बपोती बना करके न बैठे। ये विश्व का है, मानव जात का है और मानव जात के लिए है। ये इस युग का नहीं, अनेक युगों के लिए है और समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन भी आने वाला है। जिन्होंने, जैसे हेगड़े जी बता रहे थे, सोलार विमान के अंदर योगा किया होगा, तो हो सकता है जगह कम होगी तो उनको वो योगा सिखाया होगा कि भाई तुम ऐसे नाक पकड़ो, ऐसे पैर करो, हाथ नहीं हिलता, कोई नहीं, ऐसे कर लो। उन्होंने मॉडिफाई किया होगा। तो जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे परिवर्तन करते हुए इसको और आधुनिक बनाना, और अधिक वैज्ञानिक बनाना, और विज्ञान की कसौटी पर कसता चले जाएं तो विश्व कल्याण के इस काम को हम करते रहेंगे, करना होगा और उस जिम्मेवारी को हम निभाते रहेंगे। मैं फिर एक बार इस सारे अभियान में विश्व भर का ऋणी हूं, विश्व की सभी सरकारों का ऋणी हूं, विश्व के सभी समाजों का ऋणी हूं और मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग ने विश्व को मन मस्तिष्क से समीप किया है। योग के प्रसार ने सभी भेदभाव मिटाए हैं और उन्होंने जोर देकर कहा, योग करो और जीवन को जी भरकर जियो। अहम से वयम तक जाने का मार्ग है योग। स्वयं का विस्तार करके नर से नारायण बनने का रास्ता है योग। बहुत सुंदर शब्दों में, सार्थक शब्दों में सभी को संबोधित किया प्रधानमंत्री जी ने। हम पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका आभार और अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ उनका और अब आयुष मंत्रालय में सचिव श्री नीलांजन सान्याल सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। Most respected Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, respected Honorable Minister of State for Ayush Sri Sripad Nayak ji, respected Honorable Minister of State for Finance Sri Jayant Sinha ji, esteemed Yoga Gurus on the dais, Swami Ramdev ji, Dr. Virendra Hegde ji, Dr. H.R. Nagendra ji, Honorable senior officials of government, diplomats, Yoga Gurus, resource persons and experts from different parts of the country and abroad, international delegates, delegates from yoga institutions, members of media, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Ayush and myself, I feel honored and privileged to extend my heartfelt thanks to our Honorable Prime Minister for gracing this historic occasion and inaugurating this memorable event. It is his untiring visionary leadership which resulted in the declaration by the United Nations of the International Day of Yoga within a short span of only 75 days, a record in itself,
and the grand celebration of the same in India and abroad. Thank you very much, sir, for your vision and sparing your valuable time to inaugurate this conference. I deeply thank our Minister of State for Ayush, Shri Shripad Naik ji, for his continuous support and guidance in organizing this conference and sparing time for gracing this function. I also extend my heartfelt thanks to Honorable Minister of State for Finance, Shri Jayant Sinha ji, for sparing time and gracing this occasion, and the support extended by the Ministry of Finance to bring out the commemorative coins on the occasion. My sincere thanks are also due to the Ministry of Communications and Information Technology for the ministry's support in bringing out the beautiful commemorative postal stamp. My thanks are also due to the winner of the logo competition for the occasion for being present in person to receive the award. I also express my sincere thanks to esteemed Yoga Gurus, Swami Ramdev ji, Dr. Virendra Hekar ji, Dr. Nagendra ji, for their kind presence here and making this occasion point at. My sincere thanks to honorable members of parliament, all the Yoga Gurus and experts, resource persons, international and delegates, national delegates, whose enthusiastic participation has set the tone for this important conference. I extend my thanks to senior officers from different ministries, departments, state government officials, media persons, police and Vigyan Bhavan authorities, my colleagues from the Ministry of Ayush and other organizations, and all others who are present here to grace this occasion. Thank you, one and all. Jai Hind. श्री नीलांजन सान्याल का हम आभार व्यक्त करते हैं। भारत पुनः योग गुरु के पद को प्राप्त करे, इसी शुभकामना के साथ इस उद्घाटन सत्र का हम समापन करते हैं। नमस्कार। विज्ञान भवन से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन की, जिसे प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया।